Hello, my dear aspirants. I hope all of you are doing perfectly well and welcome to Super Coaching Textbook. So basically आज हम लोग discuss करेंगे what is the skin depth in a conducting medium. But before that, let me tell you this very good news which I have brought with myself. That is, in this very special occasion of Mahashivratri, Textbook Super Coaching is providing you a very good opportunity for all those aspirants who are wanting to join Textbook Super Coaching for CSIR NET, JEST, GATE examinations. The entire course price is 39,999, but that entire course is now available at a price of 14,732. So all you have to do is to use a promo code, which is my name, that is SOURAV Sourav, to grab this offer. And of course, it's a limited period offer, only it's valid till 8, like tomorrow, 8th of March. So do hurry up and don't forget to use the promo code, which is my name. Now, moving on, we can start today's short concept, which is basically skin depth. So, what is skin depth in a conducting medium? Let's talk about this. देखो, हमें पता है कि अगर हम लोग कंडक्टिंग मीडियम की बात कर रहे हैं तो इन दैट कंडक्टिंग मीडियम इफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagates, so the plane wave solutions of that electromagnetic wave is more or less E of r vector comma t is equals to E naught, which is the amplitude, into exponential of j into k dot r minus omega t. We know this. And of course, the magnetic field vector h of r vector comma t is equals to h naught, the complex amplitude, into exponential of j into k dot r minus omega t. ये सिनेरियो है. अब हमें पता है that for a conducting medium के जो वेव प्रोपगेशन वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होगा अल्फा प्लस आई बीटा, इट्स इमेजिनरी, into n cap. What is n cap? N cap is basically a unit vector in the direction of wave propagation. मतलब वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, n cap उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, तो k का डायरेक्शन और वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है वो डायरेक्शन सेम है. अपार्ट फ्रॉम दैट, k का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज अल्फा प्लस आई बीटा, जहां पे ये समझा जा रहा है कि k इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी. So we know two things here, that k का जो magnitude है that is alpha plus I beta, which is of course an imaginary quantity, and k का जो direction है that is same as the direction of wave propagation. अगर हम लोग k के इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E of r comma t, that is actually equals to E naught एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या है यहाँ पे j, k की जगह पे लिख दो अल्फा प्लस आई, नॉट डोंट राइट आई, रादर राइट j, क्योंकि i हम लोग करंट के लिए लिखते हैं तो j लिखेंगे. j इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ -1 के, तो अल्फा प्लस j इनटू बीटा, k की जगह पे फिर n कैप डॉट r वेक्टर, जैसे यहाँ पे था k डॉट r, तो k का मैग्नीट्यूड देन डायरेक्शन डॉट r वेक्टर माइनस ओमेगा t, माइनस ओमेगा इनटू t. भाई जरा यहाँ पे देख, जैसे जे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अल्फा इंटू जे प्लस जे स्क्वायर दैट इज -1 -1 इंटू बीटा, उसको अगर बाहर ले लूं तो आ जाएगा ई नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इंटू एन कैप डॉट आर वेक्टर इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ जे इंटू अल्फा एन कैप डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी. तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि सर ये क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स है, दैट मींस दिस वन रिप्रेजेंट्स द फेज. बट सर ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी एक रियल क्वांटिटी है ऐसे समझ सकते हैं, मतलब दिस वन इज अ रियल वन, और ये स्पेशली एटीन्यूट करा रहा है किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड. तो अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का सिनेरियो ये आया, सिमिलरली आई कैन राइट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो दैट h ऑफ r vector comma t can be written as h naught, माथे पे वेक्टर देना मत भूलना, e to the power of minus beta into n cap dot r vector, then exponential of j into alpha
एन कैप डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। ठीक है भाई, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जाए या कोई भी एक फील्ड को तुम ले लो, तो E इज इक्वल्स टू ई नॉट e to the power of minus beta into n cap dot r vector into e to the power of j into alpha n cap dot r माइनस ओमेगा टी। तो सर ये तो फेज है, लेकिन ये क्या है, ये है हमारा एम्पलीट्यूड। और जो हम देख पा रहे हैं दैट इज एम्पलीट्यूड इज स्पेशली एटेन्यूएटेड, मतलब एम्पलीट्यूड डिके कर रहा है एक्सपोनेंशियली। अगर इनिशियली एम्पलीट्यूड r इक्वल्स टू 0 पे ई नॉट है, उसके बाद एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिके कर, मतलब एक कंडक्टिंग मीडियम में अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करेगा तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे 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 डिक्रीज करता जाएगा। मतलब मान ले कि ये तेरा एक कंडक्टर है, ये तेरा एक कंडक्टर है, अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रहा है यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, एम्पलीट्यूड इज रिमेनिंग कांस्टेंट इन दिस केस, जैसे ही इसके अंदर घुसा एम्पलीट्यूड डिके करना शुरू कर दिया, एम्पलीट्यूड डिके करना शुरू कर दिया। सो इट्स अ कंडक्टिंग मीडियम, इट वाज वैक्यूम। वैक्यूम में और डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है, बट जैसे ही ये कंडक्टिंग मीडियम में घुसा तो घुसने के टाइम पे इसका एम्पलीट्यूड ई नॉट था, और धीरे धीरे ये एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिके करते करते जीरो हो गया। फाइन, अब मैंने पूछा है कि कितने डिस्टेंस में इसका एम्पलीट्यूड ई नॉट बाई ई टाइम्स हो जाए, 1 बाई ई नॉट टाइम्स हो जाए। मतलब मान लो अगर कंडक्टर के सरफेस पे, अगर मान ले कि ये तेरा जेड डायरेक्शन है, अगर ये तुम्हारा जेड डायरेक्शन है, तो वेव किस तरफ प्रोपगेट कर रहा है भाई, जेड डायरेक्शन में, तो एन कैप वेक्टर किस तरफ होगा, जेड कैप की तरफ। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा बन जाएगा ई नॉट, देख मैं यहाँ पे कह दूं एन कैप डॉट आर वेक्टर, अगर वेव एन कैप की तरफ, अगर वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है तो एन कैप इज योर जेड कैप, आर वेक्टर इज एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। क्या आ जाएगा, एन कैप डॉट आर वेक्टर बिकम्स योर जेड सिंपली। तो इसको मैं लिख सकता हूं ई नॉट वेक्टर e to the power of minus beta into z e to the power of j into अल्फा इंटू जेड माइनस ओमेगा टी। भाई क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, सर यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये जो इसका एम्पलीट्यूड है सर, वो एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है अलोंग द जेड एक्सिस। तो जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग द जेड डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे मूव करता जाएगा उसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 घटता चला जाएगा। तो जरा यहाँ पे देख, मान ले इस फिगर को मैं सेम फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मान लो ये तुम्हारा कंडक्टिंग मीडियम है, और इस कंडक्टिंग मीडियम में क्या हुआ है भाई, ये मेरा अलोंग द जेड एक्सिस रखा गया है, ये मेरा अलोंग द जेड एक्सिस है, और ये तुम्हारा ओरिजिन है, यहाँ पे तुम्हारा z इक्वल टू 0 है। मान लो एट दिस पॉइंट जो तुम्हारा z इक्वल टू z नॉट है, इस पॉइंट पे आके, अच्छा z इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड, अगर इस, ये तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल एक्सप्रेशन है फॉर अ वेव व्हिच इज मूविंग अलोंग z एक्सिस, तो z इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या था, z इक्वल टू 0 मतलब एकदम कंडक्टर के सरफेस, z इक्वल टू 0 मतलब एकदम कंडक्टर के सरफेस। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या था, z इक्वल टू 0 पुट कर दो e नॉट, तो डेफिनेटली एट द सरफेस द एम्पलीट्यूड वाज e नॉट। फाइन, अब धीरे 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 क्या हो रहा है, ये एम्पलीट्यूड डीके कर रहा है, डीके करते 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 एक टाइम के बाद 0 हो गया। मान लो एट दिस पॉइंट द एम्पलीट्यूड, यहाँ पे तुम्हारा एम्पलीट्यूड है ई नॉट सरफेस पे, एंड एट दिस पॉइंट द एम्पलीट्यूड इज ई नॉट बाई ई, मतलब 1 बाई ई टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड एट द सरफेस। तो मैंने पूछा है कि इतने से डिस्टेंस में एम्पलीट्यूड डीके कर गया, कितना डीके करा सर, ई नॉट अगर सरफेस पे है तो जेड नॉट डिस्टेंस मूव करने पे एम्पलीट्यूड हो गया ई नॉट बाई ई टाइम्स। तो क्या मुझे z नॉट का वैल्यू पता चल सकता है सर कि कितना डिस्टेंस दूरी पे मूव करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 1 बाई ई टाइम्स घट जाएगा? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल एक्सप्रेशन से क्या पता चल रहा है कि एम्पलीट्यूड एट पॉइंट z इक्वल्स टू z नॉट क्या होगा, e नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा z नॉट। वेरी गुड, सो आई कैन राइट e नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इनटू z नॉट। ठीक है, एट दिस पॉइंट पे जनरल एक्सप्रेशन से मेरा एम्पलीट्यूड क्या आना चाहिए, e नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा z नॉट। मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि z नॉट डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना घट गया है, सरफेस पे जितना वैल्यू था उसका 1 बाई e टाइम्स। तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू e नॉट बाई e। वेरी गुड,
बेटा देखो ई नॉट काट दो, यहाँ पे e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा जेड को मैं लिख सकता हूँ, माइनस बीटा जेड नॉट को मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर ऑफ -1, तो बीटा जेड नॉट इज इक्वल्स टू 1 एंड देयरफॉर जेड नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई बीटा। अब मैं तुम्हें एक बात कहता हूं कि ये जो जेड नॉट डिस्टेंस है एक कंडक्टर के अंदर सरफेस से मेजर करते हुए, ये जो जेड नॉट डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 1 बाई ई टाइम्स घट जाता है या अटेन्यूएटेड हो जाता है, this distance is known as skin depth. Skin depth. So what do you mean by skin depth? Sir, skin depth का definition क्या लिखूं? Skin depth. Skin depth may be defined as the distance inside a conductor, a conductor such that the amplitude of the field vectors, वो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का हो या मैग्नेटिक फील्ड का हो, सेम ही आएगा, of the field vectors decreases to 1 by e times of the amplitude at the surface of the conductor. तो बेसिकली स्किन डेप्थ को हम लोग किस से लिखते हैं? स्किन डेप्थ मैंने z नॉट से लिखा है, तुम लोग डेल्टा से लिख सकते हो। डेल्टा इज द मोस्ट यूज्ड एक्सप्रेशन फॉर स्किन डेप्थ, दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1 बाय बीटा, जहां पे बीटा क्या है, अगर k तुम्हारा वेव प्रोपगेशन वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड अल्फा प्लस i बीटा, तो यहाँ पे बीटा ये आता है। बीटा का जनरल एक्सप्रेशन हमें पता है, दैट इज ओमेगा इनटू रूट ओवर ऑफ एप्सिलॉन म्यू डिवाइडेड बाय 2, देन I can write root over of 1 plus something square minus 1 to the power of half, and this thing is equals to sigma by omega into epsilon. Sigma by omega into epsilon. It is equals to sigma by omega into epsilon to the power of half. So this is the expression for beta. I think skin depth तुम्हारा clear है। And मैं फिर से एक बार बच्चों को याद दिलाना चाहूंगा कि at this very special occasion of Mahashivratri, as we can read that Bol Bum prize come, which means that all the students who are looking forward to join test books, CSR test book for CSIR NET and set examination, this is the best time because the entire course, which costs nearly 40,000, is now available at a price of 14,732. All you have to do is to use the promo code, which is my name, that is SOURAV, and you can grab this offer. Okay, thank you very much and best of luck for your preparation. Thank you.